Good morning, everyone. Uh, we are going to start our class with the chapter Three Questions. This is the chapter we started yesterday. It is three questions. In this, let us recapitulate the chapter once. There is a king who wants to know the answer of three questions, and the questions are: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the important thing for him to do? To find out the answer of these three questions, he sends message in his kingdom and asks for wise men to come and answer his questions. But he does not get satisfied answer from any of the wise men because everyone had a different opinion and he was not happy with anyone's answer. Then he decides to meet a hermit. Hermit is a person who lives alone and leads a simple life, and that hermit was famous for his wisdom. So the king thought to go and meet him, but hermit only met the ordinary people. So king changed his attire. He did not take his horse with him, and he did not take his bodyguards with him, and he reaches to in the woods means forest. And when he reaches there, what he sees, that hermit was digging ground in front of his hut. He just greeted the king. The hermit just greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, तो वो काम करके he felt breathlessness, right? And now we are going to continue from page number 9. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? Affairs here means the things, the matters, the businesses which the king should look for. So hermit listened to the king, but he did not speak. Hermit ने उसके questions सुने, but he did not speak anything. उसने कोई reply नहीं किया. He went on digging, और वो dig करता रहा, अपना जो काम कर रहा था continue कर रहा था. You are tired, said the king. King ने इसको बोला, hermit को बोला कि तुम थके हुए हो. Let me take the spade and work in your place. मुझे अपनी स्पेड दो, मैं तुम्हारी जगह काम करूंगा. स्पेड आपको पता है, दैट इज एक टूल होता है जो डिगिंग के लिए यूज होता है, राइट? तो हर्मिट को कहता है किंग कि आप मुझे स्पेड दे दो, आई विल वर्क इन योर प्लेस. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने उसको स्पेड दे दी और ग्राउंड पे बैठ गया वो. When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. अब जब किंग ने काम कर लिया, उसने टू बेड्स, बेड्स हियर मीन्स क्यारियां. आपको पता है क्यारियां जो होती हैं जिनमें आई मीन छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ऑन द ग्राउंड होते हैं फॉर प्लांट्स, उनको हम बेड्स बोलते हैं. क्यारियों को बेड्स बोलते हैं इंग्लिश में. He stopped and repeated his question. जब उसने दो क्यारियां बना ली, वो रुका और उसने अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हर्मिट के सामने. द हर्मिट गेव नो आंसर. फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया. पर वो हर्मिट जो था, he just stood up and stretched out his hand, means extended his hand. अपना हाथ उसने extend किया ताकि वो किंग से स्पेड पकड़ सके. और उसने किंग को क्या कहा? Now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मैं काम करता हूँ. But the king did not give him the spade and continued to dig. King ने नहीं दी spade and he continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब जो काम कर रहा था उसके बाद भी 1 hour पास हो गया और फिर दूसरा, मतलब ही कंटिन्यूड वर्किंग, बट ही डिड नॉट गेट आंसर फ्रॉम द हर्मिट. अब उसको काम करते करते शाम हो गई. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब शाम हो गई उसको काम करते करते. एंड एट लास्ट जो किंग था, ही गॉट एंग्री. ही जस्ट स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड. उसने ऐसे स्टक की, हिट किया ग्राउंड को स्पेड के साथ, और उसने हर्मिट को बोला कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, और अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, मुझे बता दो. टेल मी सो का मतलब मुझे बता दो. एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट.
और तभी जब वो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हर्मिट क्या कहता है, कोई भाग के हमारी तरफ आ रहा है. Now starts the second part of the chapter. The king turned round and saw a bearded man running towards them. King ने टर्न किया जब हर्मिट ने ये बोला कि कोई हमारी तरफ भाग के आ रहा है. किंग टर्न किया और उसने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो था, bearded means दाढ़ी, जिसकी बियर्ड, तो उनकी तरफ भाग के आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्टमक मतलब जैसे हमारे जब स्टमक एक होता है, हम पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, वैसे ही जो मैन था उनकी तरफ भाग के आ रहा था, उसने भी अपने पेट को पकड़ा हुआ था ऐसे. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके पेट में से खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो भागते भागते किंग के पास पहुंचा, वो फेंट मतलब बेहोश होके, अनकॉन्शियस होके ग्राउंड पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जब किंग ने और हर्मिट ने उस मैन के कपड़े उतारे, देखा, कपड़ों को हटाया साइड पे, तो देखा वहां पे एक जख्म बना हुआ था. The king washed and covered it with his handkerchief. But the blood would not stop flowing. अब किंग ने क्या किया, उस वुंड को, उस जख्म को अपने हैंकरचिफ मीन्स हैंकी के साथ उस ब्लड को साफ किया, राइट, एंड उसको कवर कर दिया. वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिफ, उसको साफ करके कवर कर दिया अपने हैंकी के साथ. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर उसमें से अभी भी खून निकलना बंद नहीं हो रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और किंग ने फिर से उस वूंड को रीड्रेस किया. रीड्रेस मतलब उसके ऊपर उसको क्लीन करके दोबारा से ड्रेसिंग की, जब तक कि खून निकलना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब when the man felt little better, he wanted something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By the time the sun had set and the air was cool, the king was with hermits. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. जब तक ये सारा कुछ हुआ, जब तक ये इंसिडेंट हुआ, तब तक क्या था, शाम, रात हो चुकी थी, सन सेट हो चुका था, ठंडी हवा चलने लग गई थी, और जो किंग एंड हर्मिट थे, वो दोनों उस वुंडेड मैन को उठा के हट के अंदर ले आए और उसे बेड पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. मैन ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप से लेट गया. द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन मतलब अपने जो वो चल के आया था और जो उसने काम किया था उसके कारण थका हुआ था, तो वहीं फ्लोर के ऊपर वो रात, सारी रात के लिए सो गया. When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. राइट, तो जब वो उठा तो उसको ये चीज़ को रियलाइज करने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगा कि वो कहाँ पे है, और वो स्ट्रेंज पर्सन जो उसके साथ बेड पे लेटा हुआ था, who was that strange person. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उसने, bearded man ने देखा कि किंग अब जाग गया है, तो उसने किंग को बोला, मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ कर दो. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. अब ये कौन बोल रहा है, वो बियर्डेड मैन. उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब वो कौन था बियर्डेड मैन, वो एनिमी था किंग का. और वो किंग का एनिमी क्यों बना था, क्योंकि किंग ने उसके भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था और उसके भाई को मार दिया था. सीज करना होता है बेटा, फोर्सफुली किसी से कोई चीज ले लेना, कब्जा कर लेना किसी चीज पे. किंग ने उसके भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था और उसे मार दिया था, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था. रिवेंज मतलब बदला, बदला लेना चाहता था किंग से. I knew you had gone alone to. I knew that you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था. अब यहाँ पे आए कौन है, दैट बियर्डेड मैन जिसको सेव किया था किंग एंड हर्मिट ने. वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम अकेले ही हर्मिट को मिलने के लिए गए हो, इसलिए आई मेड अप माई माइंड टू किल यू एंड योर ऑन योर वे होम. और मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि जब तुम
वापस घर की तरफ आ रहे होगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. बट जब दिन गुजर गया पर तुम नहीं आए. सो आई left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. और मैं इसीलिए मैंने अपना हाइडिंग प्लेस मतलब वो जगह जहाँ पे मैं छुपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ दिया एंड तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया. हु रिकग्नाइज्ड मी. हु किसके लिए यूज हुआ है? बॉडीगार्ड के लिए. बॉडीगार्ड ने मुझे रिकग्नाइज कर लिया. रिकग्नाइज मीन्स पहचान लिया. एंड वुंडेड मी और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे तो बच के आ गया. आई escaped from him. मैं उससे बच के आ गया. बट अगर तुम मेरे wounds को ड्रेस अप नहीं करते तो मैं मर सकता था. आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने तुम्हें मारने की मेरी इच्छा तुम्हें मारने की थी बट तुमने मेरी लाइफ सेव की. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब वो bearded man कहता है कि अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ then I will serve you and I will become one of your most faithful servants. और मैं अपने बेटों को भी यही कहूंगा that they should be your servant, faithful servants. Forgive me. Again he asks for forgiveness. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. King जो था वो काफी खुश था कि उसने अपने एक एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया है. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. और उसने क्या प्रॉमिस किया कि मैं अपना डॉक्टर भेजूंगा तुम्हारी केयर करने के लिए एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि वो उसकी प्रॉपर्टी उस मैन को रिटर्न कर देगा. द किंग वुड रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ मैन to him. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for hermit. अब फिर वो बात ये खत्म हो गई जब वो he came out of the hut and looked for hermit here and there. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले वो एक बार फिर क्या चाहता था कि अपने questions के answers ले ले hermit से. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और hermit क्या कर रहा था? बीज बो रहा था. सोइंग सीड्स मतलब बीज बोना. कहाँ बीज बो रहा था? उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने प्रीवियस डे बनाई थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. कहता है कि मैं फिर लास्ट बार तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब hermit उसको कहते हैं तुम्हें तो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए ऑलरेडी. और ये बात करते करते जो hermit था वो अपना काम करता जा रहा था. He was bent down, वो सीड सो कर रहा था and the king was standing in front of him. How have I been answered? What do you mean? किंग को नहीं समझ आया कि हर्मिट ने क्या कहा. हर्मिट ने कहा कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं. बट किंग को नहीं समझ आया कि उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिल गए हैं. और वो पूछ रहा है हर्मिट से. Don't you see? Replied the hermit. Hermit ने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम पिटेड भी मतलब दया करना. अगर तुम्हें मेरी कमजोरी पे दया ना आई होती और तुमने फ्लावर वो जो बेड्स हैं वो डिग नहीं किए होते तो कल तुम वापस चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और तब तुम क्या और जब तुम वापस जाते तो दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. उस आदमी ने तुम पे अटैक करना था एंड यू वुड हैव विश्ड और तुम उस टाइम पे जब वो मैन तुम पे अटैक करता तब तुम ये विश करते कि काश मैं वहीं पे रुक जाता. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. सो सबसे ज्यादा नाउ ही इज गेटिंग द फर्स्ट आंसर. तो उसने कहा कि तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या था जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन. और उस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट
काम था। इस एक लाइन में हर्मिट ने किंग को उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, राइट। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद ना सेकेंड सिचुएशन में बता रहा है, तो कह रहा है उसके बाद जब वो मैन हमारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बट इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसके जख्मों की देखभाल नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो तुम्हारे साथ मतलब अपना इश्यूज को रिजॉल्व किए बिना ही मर जाता। हैविंग मेड पीस विद यू मतलब तुम्हारे साथ शांतिपूर्वक ढंग से अपनी फ्रेंडशिप को नहीं कर पाता, अपना रिवेंज वो खत्म नहीं कर पाता और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. So the first answer is what is the right time to do anything? Right time to do anything is now. It is the most important time. अब क्यों है ये टाइम जो है हमारे पास, क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि अभी जो हमारे पास टाइम है उसी में एक्ट करने की हमारे पास पावर है। पास्ट में जो हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर का हमें पता नहीं है, फ्यूचर के लिए वी कैन जस्ट प्लान, वी कांट टेक एनी एक्शन, ठीक है। फ्यूचर के लिए सिर्फ प्लानिंग होती है हमारी। पास्ट जो बीत चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम किस टाइम पे एक्ट कर सकते हैं, एक्शंस किस टाइम पे कर सकते हैं? प्रेजेंट टाइम में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in future and whether we'll meet anyone else। क्योंकि वो कहता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी पर्सन है तुम्हारे लिए, वो पर्सन है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे साथ है। क्या कारण है इस चीज का? फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम भविष्य में कभी किसी को दोबारा मिलेंगे। इस लाइन में वो कह रहा है दैट नो वन नोज व्हेन समवन डाइज, है ना। अब एक मिनट, बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस सुने हैं, अच्छा अभी सुबह ही तो मैंने उनके साथ बात की थी, अब उनकी डेथ हो गई, तो इट इज नॉट बिलीवेबल फॉर द पर्सन। सो हमारे लिए इट इज नॉट आई मीन हम ये चीज को नहीं कह सकते कि अगर हम इस टाइम पे इस पर्सन को मिल लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर्सन को मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। चाहे हम मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि उस पर्सन को कुछ हो, हमें भी हो सकता है, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? जो उस टाइम पे उस मोमेंट पे आपके साथ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है? उस पर्सन के लिए टू थिंक गुड, टू डू गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। क्योंकि हमें भगवान ने इस धरती पे क्यों भेजा है? why has God sent us in this whole world? Because he wants us to do good to everyone. So I hope the chapter is clear to you.